Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the last topic in this chapter, and that is cell division. In this chapter we have discussed about completely all the topics related to the cell. हमने सेल के बारे में बात की थी that cell is known to be the basic structural and the functional unit of life. Why it is known to be the structural unit? Because the cells are the building blocks for the multicellular organisms. It is the functional unit because all the activity of the body is actually performed by the cell. And so cell is known to be the structural and functional unit. Now on what basis we can call it as a functional unit? एक सिंगल जो सेल होता है, it can do respiration, it can do digestion, it can do removal of the waste. All the activities are done within the cell only. Then how is it possible to carry all these activities together? Because cells have cell organelles, and these organelles are involved in various types of processes, right? So we have discussed about the cell wall and the plasma membrane. The plasma membrane will be enclosing the next fluid filled space, which is called the cytoplasm, and inside the cytoplasm there will be a centrally located nucleus. In the cytoplasm we have discussed different types of organelles, like endoplasmic reticulum is one of such organelle, Golgi complex and lysosomes, right? The one which are associated with processing, packaging and modifying the proteins and lipids synthesized by ER. The other organelle we have discussed was mitochondria and the plastids. And lastly, we have discussed about the vacuoles. So here in this chapter, we have discussed about all the basic structures which are involved in the structure of cell. Anything less than a cell cannot have its own independent existence. एक सेल से कम कुछ भी हो तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता. दो ऑर्गेनल्स फंक्शन करते हैं, पर ऑर्गेनल्स जब अकेले होते हैं, दैट सिंगली ऑर्गेनल्स कैन नॉट आल्सो फंक्शन. दे आर एबल टू फंक्शन ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन दैट सेल. So that is being discussed by us in this chapter, and now we are moving on to the last topic of this chapter, that is cell division. Now why does a cell need to divide? A cell has an importance to divide because older cells will be replaced by new cells. जब एक सेल का फंक्शन बहुत ही पुराना, मतलब जब सेल ही बहुत ही पुराना हो जाता है, तो वो इतना अच्छे से फंक्शनल रहता नहीं है. तो ओल्डर सेल्स को रिप्लेस करके न्यू सेल्स लाना बहुत जरूरी है. इसके अलावा whenever you have any type of injury, तो वहां पे रिपेयर की जरूरत होती है. तो फॉर द रिपेयरिंग ऑल्सो, रिपेयरिंग ऑफ योर टिश्यूज ऑल्सो, यू रिक्वायर अ सेल टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स. नेक्स्ट, इफ यू आर फॉर मीन्स हमारी बॉडी की एक बेसिक है चीज जो ग्रोथ है, राइट? हम छोटे से इतने बड़े हुए हैं तो हमारा साइज जो है वो बड़ा हुआ है. So this increase in the size, this growth of the body is also resultant of the process of cell division. उसके अलावा हम कह सकते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो सेल डिवीजन एक रिप्रोडक्शन ही हुआ, राइट? सेल डिवीजन कैन बी अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हाट? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बिकॉज एक में से दो सेल बनना, दैट इज व्हाट? रिप्रोडक्शन ओनली, एंड दैट इज व्हाट? सेल डिवीजन. In the higher organisms, it is required for the growth of the body, right? Even in higher organisms, हमारी बॉडी में जो गैमेट्स बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स भी सेल डिवीजन से ही बनते हैं. तो हमें ये तो पता चल जाना चाहिए कि सेल डिवीजन जो है वो जरूरी तो है ही, पर एक इनएविटेबल प्रोसेस है. इनएविटेबल मतलब होनी ही चाहिए. सेल डिवीजन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट? तो हम पहले लिखते हैं दैट सेल डिवीजन. व्हाट इज सेल डिवीजन? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी विल मेंशन द प्रोसेस ऑफ formation of new cells from pre-existing cells. From pre-existing cells is known as
सेल डिविजन। तो सेल डिविजन हम कब कहते हैं? सेल डिविजन इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिससे बनते हैं नए सेल्स, राइट? न्यू सेल्स आर फॉर्म, बट ऑब्वियसली न्यू सेल्स क्या है, ऊपर से तो नहीं आ जाने वाले हैं। तो न्यू सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय द डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एग्जिस्ट हो रहे हैं। जब वो डिवाइड होते हैं तो दो नए सेल्स बनते हैं, एंड दैट इज हाउ द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन टेक्स प्लेस। नाउ लेट अस टेल व्हाई द सेल डिविजन टेक्स प्लेस। द सेल डिविजन टेक्स प्लेस the cell division takes place. Why does it take place? क्यों हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता है? तो पहले हम लिखेंगे to replace the older and non-functional cells, to replace older and non-functional cells, राइट? जब हमारी बॉडी में हर एक सेल जो होता है उसकी एक लाइफ स्पैन होती है। तो कई बार क्या होता है दैट आफ्टर अ लॉन्ग वर्किंग टाइम दीज सेल्स आर नाउ बिकमिंग नॉन फंक्शनल एंड दे हैव बिकेम ओल्डर। ओल्डर सेल्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू एंड द यंगर एंड द मोर फंक्शनल सेल्स। तो रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन बहुत ही जरूरी है। किसे रिप्लेस करना है? वी हैव टू रिप्लेस द ओल्डर सेल्स and replace with whom? Replace with the new young cells. Okay. Second reason why cell division takes place is for the growth of our body. हम छोटे से इतने बड़े हुए हैं तो हमारी बॉडी में number of cells has increased. When you are born, the number of cells are 10 to the power 12. And when you are changing to an adult, the number of cells are 10 to the power 14. तो आप समझ सकते हो दैट हमारी बॉडी में कितना ज्यादा सेल डिवीजन होता है, तब जाके हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा बॉडी जो है वो ग्रोथ करता है, इंक्रीज होता है साइज में। सो सेकेंड रीजन व्हाई सेल डिवीजन अकर्स इज द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो दिस इज द सेकेंड रीजन कि सेल डिवीजन क्यों होता है। थर्ड रीजन ये है टू रिपेयर द टिश्यूज, राइट? कोई टिश्यू इंजर्ड हो गया है, कोई डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर, जैसे कि हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो वो चोट लग जाती है, पर फिर आप थोड़े दिन के बाद when you observe it after 5 to 7 days your skin has completely healed back to normal. That healing is also due to the cell division, क्योंकि वहां पे वो जो पुराने सेल्स थे, डैमेज सेल्स थे, they are being replaced by the new cells. Okay, so we can say that to repair the injured tissues, तो इंजर्ड टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा सेल डिवीजन जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो फीमेल्स में होते हैं ओवरीज और मेल्स में होते हैं टेस्टिस। ये ओवरीज में सेल डिवीजन करने से एग बनता है और टेस्टिस में सेल डिवीजन होने से स्पर्म्स बनते हैं। तो एग और स्पर्म बनाना जरूरी क्यों है? बिकॉज व्हेन एग एंड स्पर्म कंबाइन विथ ईच अदर, जिसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन, उसी से बनता है जाइगोट और उसी से स्टार्ट होती है नई लाइफ। एंड देयरफॉर सेल डिवीजन इज आल्सो, इट इज एसेंशियल इन reproductive organs for gamete formation. For the gamete formation, मतलब हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमेट बनते हैं। फीमेल गैमेट को एग कहते हैं और मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं। तो गैमेट्स बनेंगे तभी ही तो फर्टिलाइजेशन होगा और तभी जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो ही तो उससे नया ग्रो होके पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, राइट? तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने समझ लिया कि सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सेल्स फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है? तो सेल डिवीजन होता क्यों है? सेल डिवीजन occurs for the growth of the body. Cell division occurs to replace the older cells.
It occurs for repairing your injured tissues. It also occurs for developing the gametes in the reproductive organs. तो अब हम समझ लेते हैं कि सेल डिवीजन किस टाइप्स का होता है. तो सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स. The cell division is of two types. दो तरह के सेल डिवीजन प्रोसेसेस होते हैं. पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस. हमारी बॉडी में दो तरह के सेल डिवीजन प्रोसेस होते हैं. एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस. मतलब ये दो तरह के सेल डिवीजन क्यों होते हैं और इनमें क्या अलग है. तो पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं अबाउट द माइटोसिस. तो माइटोसिस जो डिवीजन है उसमें ईच सेल विल बी फंक्शनिंग एज अ पैरेंटल सेल and it will divide and give rise to two new cells. Okay, so each cell functions as mother cell and divides to form two daughter cells. हर एक जो सेल है वो एक मदर सेल है और मदर सेल में से क्या बनेगा, दो डॉटर सेल्स बनेंगे. अब माइटोसिस जो होता है वो हमारी बॉडी के सोमेटिक सेल्स में होता है. It takes place both in plants and in animals, but for the general growth of the plants and animals. ठीक है. So it takes place both in plants and animals somatic cells. Right? हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स. सोमैटिक सेल्स मतलब सेल्स ऑफ द होल बॉडी और रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब सेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, मतलब जो एग और स्पर्म बनते हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल. बट बॉडी के बाकी सारे सेल्स क्या है, सोमैटिक सेल्स है. जैसे कि आपके चीक के सेल्स हैं, आपके लिम्स के सेल्स हैं, राइट, आपके थाइस के सेल्स हैं, आपकी पूरे स्टमक के सेल्स हैं, वो सारे ही सेल्स क्या होते हैं, सोमैटिक होते हैं. तो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं उनमें किस तरह का डिवीजन होता है, माइटोसिस. Somatic cells will undergo which type of division, mitosis. So what it is for? Mitosis जो होता है उसमें क्या रहता है, that the number of chromosomes are same in mother cell and daughter cells. Right? इसका मतलब ये हुआ that if mother cell has presence of 46 chromosome, the two daughter cells formed will also have 46 chromosomes. अगर मदर सेल जो है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं तो दो जो नए डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी इक्वल नंबर मतलब 46 क्रोमोसोम्स होंगे. तो ऐसा डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, इस डिवीजन को कहा जाता है माइटोसिस. ठीक है, वापस से एक बार समझिए, माइटोसिस जो है इसमें ईच सेल हमारी बॉडी का जैसे कि स्किन का सेल है, ठीक है, तो स्किन का सेल है दैट इज नोन एज मदर सेल. स्किन का सेल जब डिवाइड होगा तो उसमें से बनेंगे दो डॉटर सेल्स. अब ये जो दो डॉटर सेल्स बने हैं इन डॉटर सेल्स में भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, सेम एज द पेरेंटल सेल. ओके, सो दिस इज द पेरेंटल सेल or you can say mother cell and this is the daughter cells. So we have to mention that number of chromosomes remain same in whom, in the mother cell and the daughter cell. ठीक है, why does this mitosis take place? दोनों plants में भी होता है और animals में. Plant के कौन से parts somatic होते हैं, leaf, stem, right, the roots, these all are somatic part.
प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर क्या होगा, या स्टेमन है, तो उसमें जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। सोमेटिक पार्ट में क्या होता है? माइटोसिस। सो इट टेक्स प्लेस फॉर, इट अकर्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स। माइटोसिस क्यों होता है? सो दैट वी कैन ग्रो एंड वी कैन रिपेयर अवर इंजर्ड टिश्यूज। तो इंजर्ड टिश्यू को रिपेयर करना और ग्रो होना, दैट इज ड्यू टू व्हाट? माइटोसिस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मियोसिस ऑल्सो। So just like mitosis, we also have another type of division which is called meiosis. तो meiosis जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस से अलग है, क्योंकि माइटोसिस occurs in the somatic cells of our body. सोमेटिक मतलब जो हमारे जनरल जो बॉडी सेल्स हैं, राइट, हमारे स्किन के सेल्स हैं या ऑर्गन्स के सेल्स हैं, वो सोमैटिक सेल्स हैं। तो सोमैटिक सेल्स में ग्रोथ होने के लिए या तो फिर हम कह सकते हैं रिपेयर के लिए माइटोसिस होता है, और हर एक माइटोसिस डिवीजन में एक पैरेंटल सेल दो नए डॉटर सेल्स देता है, जबकि मियोसिस जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ आवर बॉडी। इट टेक्स प्लेस in reproductive cells of our body। तो हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, मतलब जिसमें गैमेट्स बनने वाले हैं, उन्हीं सेल्स में क्या होता है? मियोसिस होता है। In meiosis, one parental cell undergoes cell division for 2 times। एक पैरेंटल सेल 2 बार सेल डिवीजन करता है। ओके, so one parental cell undergoes cell division for 2 times, and gives rise to 4 daughter cells। जबकि माइटोसिस में क्या था? एक सेल में से 2 ही सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में एक सेल में से कितने बनते हैं? 4, क्योंकि 1 सेल इज गोइंग टू अंडरगो सेल डिवीजन फॉर 2 times, and when it undergoes division for 2 times, it will give rise to how many daughter cells? 4 daughter cells at the same time, राइट। तो 4 डॉटर सेल्स बनने वाले हैं सिर्फ एक सेल में से, जबकि माइटोसिस में एक सेल में से सिर्फ कितने बनते हैं? 2 डॉटर सेल्स। नाउ माइटोसिस में एक और चीज थी, दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे रिमेन सेम इन पैरेंटल सेल एंड इन द डॉटर सेल, whereas here the number of chromosomes in daughter cell reduces to half the number of chromosomes in parental cell। मतलब पैरेंटल सेल से हाफ हो जाएंगे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल। मतलब अगर पैरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, मैं हमेशा 46 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ह्यूमंस में हमारे हर एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे हर एक सेल में। तो 46 क्रोमोसोम्स व्हेन इट विल अंडरगो फर्स्ट सेल डिवीजन, तो 2 सेल बनेंगे और ये दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, दैट इज 23। और ये जब सेकेंड सेल डिवीजन करेंगे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। 4 सेल बने और चारों में कितने क्रोमोसोम्स हैं?
23। मतलब ये जो है वो पैरेंटल सेल है और ये जो है वो डॉटर सेल्स है। तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स क्या हो गए, रिड्यूस टू हाफ। वही हमने लिखा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू रिड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू द पैरेंटल सेल। अब हमें ये समझना है कि क्यों रिड्यूस हो गए हाफ, राइट? हाफ क्यों बन जाते, मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 करने की जरूरत क्या है? तो इसका रीजन ये है दैट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एग और स्पर्म दो सेल्स होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेट्स। क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। तो ये जो एग होगा, ठीक है, वो एग इसी प्रोसेस से बनेगा क्योंकि हमने पहले ही कहा है मियोसिस टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी। तो एग जो है इट विल हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, 23। सेम वे स्पर्म्स विल आल्सो हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, 23। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, राइट? और फर्टिलाइजेशन के एंड पे एग और स्पर्म फ्यूज हो जाएंगे तो वापस कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46। मतलब जो नया जाइगोट बना उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। Now when again it will undergo meiosis, again 23 chromosomes. So meiosis takes place in order to regulate the number of chromosomes. वरना क्या होता, egg will be 46 chromosomes, sperms will have 46 chromosomes, they will combine, the number of chromosomes will change, and therefore in every generation the number of chromosomes will be altered. So this is the reason why it is very important to reduce the number of chromosomes to half. And that is how the process of meiosis is going to occur. याद रखना स्टूडेंट्स, meiosis जो है वो reproductive cells, मतलब जहां पे गैमेट बनने वाले हैं वहीं पे होता है। बॉडी के बाकी सारे ही पार्ट्स में कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस। बॉडी के बाकी के सारे सेल्स में माइटोसिस होता है, सिर्फ यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होता है। और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। माइटोसिस में एंड पे 2 सेल्स बनते हैं, मियोसिस के एंड पे 4 सेल्स बनते हैं। सो इवन यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन the mitosis and meiosis, and that is how you have to mention at least 3 to 4 points of difference between them. आप चारों पॉइंट में एक और ऐड कर सकते हो, this takes place in somatic cells and this meiosis takes place in the reproductive cells. Okay, so here we have completed this chapter. If you have liked these videos, it is very important for you to give like, give comments, right? Give positive comments and also show to your other friends so that they can also be benefited by our teaching methods.